جس مسئلے پہ آج میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے عصمت انبیاء و عظمت صحابہ. ایک تو آپ نے سنا ہوگا صحابہ کے اسٹیج پہ کہ عظمت انبیاء کیا ہے، عصمت انبیاء کیا ہے، عظمت صحابہ کیا ہے. میں نے اس سے ہٹ کے بات کرنی ہے خالصتاً علمی انداز. یاد رکھیں صرف شیعہ صحابہ کا دشمن نہیں ہے، صرف رافضی صحابہ کا دشمن نہیں ہے کہ ہم اسے صحابہ کا دشمن سمجھتے ہیں. دیوبندیت کے لبادے میں ایسے ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہیں، سنی کہیں، اہل و سنت کہیں اور صحابہ کرام کے خلاف لکھیں، صحابہ کے خلاف بولیں، صحابہ کے خلاف کتابیں شائع کریں، بلکہ اس سے بڑھ کے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے مرتکب ہو جائیں اور ہم انہیں جماعت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں. یاد رکھیں فرقہ جماعت اسلامی کا علماء دیوبند سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ مودودیت کا طبقہ ہے. اس پہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے چند کتابیں اکٹھی کی ہیں. آج میں صبح سے بیٹھا اس فرقے کے تعارف کے لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی اکثر کالج میں، یونیورسٹی میں، اس طرح کے لیول میں جتنے ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت ہے. میں آج ان کی کلی کھولنے لگا ہوں کہ جماعت اسلامی کے عقیدے کیا ہے. جماعت اسلامی کو بنانے والے کا نام مولوی ابو الاعلیٰ مودودی ہے. یہ ابو الاعلیٰ مودودی وہ ہے جو 1903 میں پیدا ہو رہا ہے اور 1938 کے اندر جب اس کی عمر 35 سال بنتی ہے یہ فتنہ مودودیت جماعت اسلامی کی بنیاد رکھتا ہے. ذرا میں چلتا ہوں پھر آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے خلاف میں نہیں اشرف علی تھانوی کا قلم چلا ہے. جماعت اسلامی کے خلاف میں نہیں مولانا حسین علی مدنی کا قلم چلا ہے. میں نہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی کا قلم چلا ہے. حضرت مولانا احمد لاہوری کا قلم چلا ہے. ان بزرگوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. آپ کے سامنے عبارات نہ ہوں اور بات ہے، جب عبارات آئیں گی آپ میری پوری گفتگو سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کتنے خطرناک لوگ ہیں. اور ہم کالج میں، یونیورسٹی میں یا ووٹوں کے معاملے میں یا شباب بلی کے نام سے یا مختلف ناموں سے ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں، اندر کتنے بدبودار عقیدے رکھتے ہیں. اب سب سے پہلی اس شخص نے 35 سال کی عمر میں فتنہ مودودیت کی بنیاد رکھی. ابو الاعلیٰ مودودی اس نے بنا دیا، یہ جماعت بن گئی. اب ذرا دیکھیے اس کی اپنا علمی اسٹیٹس کیا ہے. یہ شخص 8ویں جماعت میں فیل ہوا ہے. میں نے نہیں، آتش فشاں انہی کے رسالے میں لکھا ہے. آپ 1938 کا آتش فشاں اٹھا لیں، انہی کے رسالے. اور قومی ڈائجسٹ 1980 کا جو چھپا ہے جنوری میں لاہور سے، انہوں نے لکھا ہے 8ویں جماعت میں فیل ہوا، 9ویں میں بٹھا دیا گیا اور 10ویں پوزیشن سے پاس کی. میں حیران ہوں جرا 8ویں پاس نہ تھی سکے 10ویں پوزیشن ہولڈر کی میں پڑ جائے. اچھا پھر اس کے بعد یہ بیچارے آگے گئے ہیں. چلتے چلتے جب حضرت شاعر بنے تو مودودی نے سب سے پہلے شعر کہا ہے. ایسا شعر کہا ہے کہ اسلام کے عقیدے پہ جو ہے نا ضرب لگا دی ہے. اس کا شعر ہے آتش فشاں، صفحہ نمبر 16، نومبر 1970 نے اس کو نقل کیا ہے. جنت کے متعلق کہتا ہے کسی نے اسے جنت کی بات سنائی کہ یہاں خرچ کر اللہ جنت دے گا تو وہ کہنے لگا جنت یہ تو ادھار ہے، ادھار کے ہم قائل نہیں، ہمیں نقد چیز بتاؤ. تو اس نے شعر پڑھا، ہم نقد کے طالب ہیں پیسے کے نہیں قائل. ہم نقد کے طالب ہیں پیسے کے نہیں قائل، کیوں ہم کو سناتا ہے جنت کا یہ افسانہ. وہ جنت کو افسانہ مانتے ہیں. افسانہ، افسانے کیا مانتا ہے؟ ڈرامہ. وہ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں غلط قسم کی سٹوری. تو کہتے ہیں جنت کا یہ افسانہ، ہم نقد کے قائل ہیں پیسے ادھار. یہ پرانی اردو ہے، پیسے کے نہیں قائل کیوں ہم کو سناتا ہے جنت کا یہ افسانہ. پہلا شعر ہے. اچھا ذرا آگے چلیں. مودودی کی کہانی میں اس کی بیگم کی زبانی سنانے لگا ہوں. محمودہ بیگم اس کی بیوی ہے. اس سے کسی نے پوچھا بتائیں آپ کے قائد جماعت اسلامی کے بڑے بھائی ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کیسے تھے؟ تو بیگم نے بڑی پیاری بات کی ہے. یہ انہی کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میرا ایک لفظ بھی نہیں ہوگا اس پہ، یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی بیگم نے کہا یہ درست ہے کہ مولانا کلین شیو تھے لیکن ترجمان قرآن سے رسالہ بھی نکالتے تھے. ترجمان قرآن رسالہ ہی کٹائی تو داڑھی چٹ. میں حیران ہوں یہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والا آ گیا. اچھا پھر آخر میں کہنے لگے کہ آپ کے اوپر کوئی سختی کرتے ہیں؟ تو مودودی کی بیگم کہنے لگی ہفت روزہ ندائے ملت 23 ستمبر 1998 اٹھا لیں. وہ کہتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو مولانا مودودی نے مجھے کہا تمہاری مرضی ہے تم پردہ کرو، تمہاری مرضی ہے نہیں کرو، میں تمہیں نہیں کہوں گا. یعنی اس پہ میں ایک تبصرہ کرتا ہوں کہ حکم الہی میں بھی دل لگی نہیں چھوڑی. حکم الہی میں بھی دل لگی نہیں چھوڑی. تیری مرضی ہے پردہ کر. یہ عائشہ سے زیادہ مقدس ہے، فاطمہ سے زیادہ مقدس ہے. اللہ فرماتے ہیں کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. نبی کی بیویاں بیٹیاں پردہ کریں اور ایسے تو کر بھگ نہ کر کہ تو لے آئیے. اندازہ دیکھیں. پھر گھر کا حال، سائرہ عباسی فاروق کی بیٹی ہے، فاروق کی بیوی ہے، اس کی بہو ہے، اس کا حال سنو. جب یہ نکلی ہے نا
इसने किसी से पूछा कि भाई आपने पर्दा क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब सुने, मौदूदियों ने खुद लिखा है। इसकी बहू कहती है मकातीब ज़िंदा सफा नंबर 89, रोजनामा जिसारत कराची सफा नंबर 8, वो कहती है सुने कि जब सहाफियों ने मुझसे पूछा कि आप पर्दा नहीं करती, तो मैंने कहा बाबा मैं गाड़ी चलाती हूँ, बैंक जाती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने आने जाने के लिए आती हूँ, तो मैं पर्दे की बो बनी रहूं। ये घर का इल्मी स्टेटस है, और आपके सामने जमात का नाम जमात इस्लामी है। अच्छा आगे जरा, ये तो इसकी जाती हाल थे, हमें जाती हाल पे एतराज नहीं है, मुझे इस तमाम बातों पे एतराज नहीं है। मैंने तारुफ जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, सिर्फ तारुफ के लिए आपको सुनाया। अब जरा इसके अकायद देखते हैं कि अकीदे का मामला है। बेचारे देखें, मौदूदी के अकीदे में सबसे पहले आते हैं हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ, कि हजरत अंबिया के बारे में मौदूदी ने क्या से क्या अकीदे लिखे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मौदूदी का अकीदा अगर आप पढ़ें तो शायद ये लफ्ज सुने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान पाक बताता है वलकद अहिदना इला आदम मिन कब्लु फनसिया, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हमने अहद लिया था और हजरत आदम भूल गए थे। ये लफ्ज है ना, भूल गए थे। अब भूलने को मौदूदी क्या लिखता है, ये इसकी अपनी किताब तफहीमुल कुरान जिल्द नंबर 100 सफा नंबर 133, कहते हैं कि शैतान ने लालच दिया तो आदम उसके लालच के मुकाबले में जम न सके और फिसल गए। बस एक फौरी जज्बा पैदा हुआ जो शैतानी तहरीस की वजह से उभर आया था, इन पर ज़हूर तारी कर दिया। ज़ब्त नफ्स की गिरफ्त ढीली होते इताअत की बुलंदियों से मासियत की पस्ती में जा गए। इताअत की बुलंदियों, रब की फर्मा बरदारी की बुलंदी से गुनाह के निचले तबके में, असफल साफिलीन, गुनाह के निचले तबके में मासियत की पस्ती में जा गिरे। ये पहले नबी हजरत आदम पे मौदूदी ने हाथ साफ किए, ये पहले नबी। और आप और हम समझे ये सियासी जमात है, हम इसका साथ देंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए जिस शख्स का अकीदा ये हो, आप बताएं मैं इस शख्स को किस तरह जमात इस्लामी और इस्लाम की जमात तस्वर कर सकता हूं। अच्छा, फिर इसके साथ ये भी देखें कि इस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़े को क्या कहा है। बल्कि इससे बढ़ के आपके सामने एक इबारत इसकी रखो, आप लोग पढ़ चुके हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं मानती थी। कुरान पाक ने उसके लिए बताया है, आयत नंबर 63 सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा, वरफअना फौककुम अत्तूर, कि जब कौम मूसा ने मानने से इनकार किया तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा कौम को कहा मैंने तुम्हारे ऊपर इतने इनाम किए, तुम मेरा दीन नहीं मानते। पहाड़ उठा के उनके ऊपर ला के रख दिया, मानते हो या नहीं मानते। वरफअना फौककुम अत्तूर, उनके ऊपर अल्लाह ने पहाड़ को बुलंद करके चढ़ा दिया। अब ये पहाड़ हकीकतन आया था। मौदूदी से किसी ने पूछा हजरत पहाड़ आया था, तो अब इसकी जरा तशरीह सुने इसने क्या कहा। ये जल्द अव्वल तफहीमुल कुरान सफा नंबर इसका 83 है। कहते हैं कि बस मुजमलन यूं समझे कि पहाड़ के दामन में मीसाक लेते वक्त खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी गई थी और यूं लगता था कि पहाड़ इन पे आ गिरेगा। वो खौफनाक सूरत हाल थी, पहाड़ नहीं आया था। ये नबी के मौजज़े के ऊपर हाथ साफ कर रहा। कुरान पाक में है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो डंडा था वो क्या बन गया था। अब कोई कहे साफ लगदा आई हाई कोनी, तो मौजज़े पे हाथ नहीं साफ कर रहा, तो ये मौजज़े पे हाथ साफ कर कहते हैं लगदा नहीं आई, पता नहीं हाई या कोनी, ये बात नहीं है। आप अंदाजा देखें, इसने शुरू में खुद लिखा है कि मैंने तफसीर किस तरह पेश की है और किस अंदाज में मैं तफसीर करता हूं। मैंने हदीस पाक आपके सामने पढ़ी, अपने खुतबे में उलमा समझे है, मन काला फिल कुरान बिरायही व इन असाब फकत अख्ता। हुजूर ने फरमाया लोगों, अगर कोई आदमी अपने तौर पे कुरान में बोलने लग जाए ना भाई ना मतलब ये है तेना मतलब ये है, कि वे जितने गुमराह फिर गए। हमारे भाई इकबाल बैठे इनसे पूछे घर वाइंदे कुरान का तर्जुमा पढ़ के लो। ये इस तरह के जो लोग हैं इनके लिए हुजूर ने फरमाया व इन असाबा, वो सच भी बोले ना फकत अख्ता, वो गलती होगी। कुरान में अपनी तरफ से बात नहीं करनी। अब मौदूदी के लफ्ज सुने, खुद लिखता है सफा नंबर 10 जिल्द अव्वल तफहीमुल कुरान, कहते हैं मैंने अपने इस कुरान पाक को उर्दू के अल्फाज का जामा पहनाने की कोशिश की है। कुरान की इबारत को पढ़ के जो मफहूम मेरी समझ में आया, जो मफहूम मेरे दिल पे असर किया, उसे मैंने नकल कर दिया। अब तेरी समझ से पाबंद है, तेरे दिल से असर से पाबंद है। ये मौदूदी के अल्फाज है। आप हैरान हो जाए कि इस शख्स ने कहां से कहां तक इस मामले को लेकर गया है। बंदा हैरान और परेशान हो जाता है कि इस शख्स के इस्तदलाल देखें, इस शख्स के कारनामे देखें, इसने कहां तक दीन की खिदमत की है। और आप और हम समझते हैं कि इस शख्स की दीनी खिदमत है। अच्छा, दुनिया का हर मुसलमान जानता है
کہ قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں. مقطعات کے کیا معنی؟ الف لام میم طہ یاسین حامیم کاف ہا یا عین صاد، یہ لفظ ہے نا، اس کا معنی واللہ عالم بمرادہ، اللہ جانتے. مودودی کہتے ہیں نہیں، پہلے لوگوں کو یاد ہی بات ہی بھول گیا. یہ میں نہیں کہتا، خود الف لام میم سے شروع کیے، جلد اول تفہیم القرآن صفحہ نمبر 49، 50 سے کم. یہ کہتے ہیں کہ بلکہ اس وقت کے سامعین تو بالعموم جانتے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے، بعد میں یہ اصول عربی میں متروک ہوتا چلا گیا اور اب اس کا معنی کرنا مشکل ہو جائے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضور نے سکھایا تھا تو صحابہ بول گئے، یہ نہیں بولتا. کبھی اس نے اپنے نوالے کو ناک میں نہیں ڈالا، منہ میں ڈالا ہے، یہ ناک نہیں بڑھاتے بول گیا تھا. اور میرے صحابہ پہ ہاتھ صاف کر جا، میں نے کہا نا مقام ہے صحابہ پہ بات کرنی یہی ہے، اور اس پر ہم بھی پہ ہاتھ اس کا یہی ہے. بندہ حیران ہو جائے، اب دنیا میں کس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے حروف کے معانی اللہ جانتے ہیں، اور اس نے ہاتھ صاف کر کے کہہ دیا کہ معاملہ اس طرح ہے. بلکہ اگر اس سے بڑھ کے دیکھیں نا، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مودودی صاف کرتا ہے ہاتھ. آپ اس عبارت کو سنیں اور پھر اس کے اوپر بات کریں. یہ سورۃ ہود آیت نمبر 46 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343 ہے، تفہیم القرآن. مودودی سے کسی نے کہا کہ نبی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے نبی کے متعلق ہاتھ صاف کیے. کہتے ہیں بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوریوں سے مغلوب ہو جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے سامنے نفس کی گرفت ایسی آ جاتی ہے، اچھا سے کیا کرو نبی کے لیے اتنی بڑی بکواس. ایک جنتی کے پاس 1000 انسان جتنی طاقت، 1000 انسان ایک جنتی کے پاس 4000 جنتیوں جتنی طاقت ایک نبی کے پاس ہے. اتنا بہادر حضرت علی جیسا شجاع آدمی کہتے ہیں کہ جب طائف اور اوتاس کے اندر جنگ ہوئی اور ہمارے لوگوں کے پاؤں اکڑ گئے تو مجھ جیسا آدمی بھی رسول اللہ کی اوٹ میں پناہ لیتا تھا. اس سے بڑی بہادری امام الانبیاء، اور تو اپنے نبیوں کو کمزور پیش کر دے. اور میں کہوں نہیں صرف اسلامی جماعت ہے، گزارا کر لیں، اس کے بڑے کا نام منور ہے، نور مانا ہوتے ہیں، حسن نام ہے، اس کی حمایت کر لیں. یہ کیسی بات ہے؟ میں منور حسن کی آپ کو سناتا ہوں جو ابھی امیر ہے، انہوں نے اپنے دور میں کیا کہا ہے. یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مودودی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہیں، اس کے ریمیکس ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس نے ہاتھ صاف کیے. تفہیم القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 327 مودودی کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے جو فعل ظاہر ہو گیا تھا وہ خواہش نفس کی بنیاد پہ تھا، خواہش نفسانی کی بنیاد پہ تھا، اور حاکمانہ اقتدار کا اس نے نامناسب استعمال کیا تھا. ڈکٹیٹرشپ انگلش میں سے کہتے ہیں، ایسا ڈکٹیٹر پرویز شرف لانتی کو آدھے اور یہ سے کہا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کوئی عام بندہ نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسا کام تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والوں کو کبھی زیب نہیں دیتا جو داؤد نے کیا. یہ مودودیت ہے. آپ اندازہ رکھیں، میں نے جان بوجھ کے آج فطرہ مودودیت کو موضوع بنایا. یہ شاید آپ کے سامنے پہلے عبارات نہ آئی ہو، اور ہم سمجھتے ہیں مودودی تو حضرت معاویہ تھا دشمن ہے. میں نے ایک بچپن میں ایک مولوی سے پوچھا تھا آپ کو پتہ ہے میں اس معاملے میں چلا کیوں ہوں؟ مجھے بچپن میں مودودی، مماتی، بریلوی، شیعہ ملتے تھے، پوچھتے تھے اے سوال کا جواب ہے، تو ہم مولویوں سے پوچھتے. میں مولویوں کا نام نہیں لیتا، جانتا میں آج تک دل میں رکھے ہوئے ہیں. جس مولوی کے پاس مجھے کہا چھوڑ یار تو بال ہے، دماغ خراب کرنا، کیا کو کہہ رہا تھا تو اٹھ دے. یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے. لیکن آج میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں تم شکر کرو تمہیں کوئی بتانے والا ہے، تم شکر کرو تمہیں کوئی سمجھانے والا ہے. ہم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے اس معاملے میں، سمجھا دیتے. میرے بچے کو، میرے شاگرد، میرے دوست کو غیر مکلف مماتی سوال کرے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اس کا جواب نہ دے سکے تو مجھے بتاؤ میرا بچہ اگر مماتی، یہ مولانا جو ابھی سنا رہے تھے کہ تسا نہ دیتا سا غیر مکلف تھی ہوئے تو یہی معاملہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم یہ معاملے میں چل رہے ہیں اپنے بندوں کو بچانے کے لیے. لوگ کہتے نہیں تھے گزارا کرو. یہ تو وہی مثال ہے جیسے ایک آدمی کے گھر لوگ چور گھسے، اس کا سارا سامان لے کے چلے جائیں اور یہ اس سے لڑنے لگا تو لوگ کہتے تو شریف آدمی میں کیوں چورانہ لڑ دے یہ نہ مجھے تمہارا مال ٹھیک کے گھر میں یہ عقل بندی ہے. شریف آدمی تو آپ کو نہیں چاہیے تھا. یہ مودودیت کا صرف میں نے انبیاء کرام کے لیے معاملہ کھولا ہے، ورنہ بے شمار حوالے ہیں اس کے، بے شمار حوالے. میں صرف وقت کی قلت کی نزاکت کی وجہ سے آگے چل رہا ہوں. ذرا دوسرے معاملے پہ آؤ، مودودی اور حضرات صحابہ کرام. حضرات صحابہ کرام کے لیے اس پہ بھی تفصیل ہے، چلو پہلے سنتے جائیں. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی ان بیویوں جیسی کائنات کی کوئی عورت نہیں. یہ میں نہیں کہتا، 22 پارے کا پہلا صفحہ سورت نمبر 33 سورت احزاب بتاتی ہے. یا نساء النبی جی
लस्तुन्न काहदिम मिनन निसा, तुम जैसी कायनात में कोई औरत नहीं है। याद रखो, ये लस्तुन्न का अहद, लफ्ज अहद से नफी उलमा जानते हैं अल्लाह ने यह अपनी जात की है या सहाबा कराम की बीवियों, हुजूर की बीवियों के लिए कहा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। लफ्ज अहद कह के अल्लाह ने अपने गैर की नफी की है कि मेरा गैर अहद भी नहीं है, कोई भी नहीं। और यही लफ्ज पैगंबर की बीवियों के लिए बोला है, लस्तुन्न का अहद, वही लफ्ज बोला जैसे मेरा कोई शरीक नहीं है वैसे तुम्हारा जैसी भी कोई औरत नहीं है। इतनी नबी की औरतों, और याद रखो दुनिया की तमाम औरतें नमाजें पढ़े, एक नमाज एक अजर, एक हज एक अजर, एक रोजा एक अजर। पैगंबर की बीवी नमाज पढ़े, 22 पारे की पहली आयत बताती है एक नमाज पे 2 अजर, एक रोजे पे 2 अजर, एक हज पे 2 अजर, एक ज़कात पे 2 अजर। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, मर्रतैन, डबल अजर मिलेगा। ए नबी की बीवियां, अब मौदूदी साहब से देखो, मौदूदी लफ्ज बोलता है, आप इसको देखो हैरान हो जाओ। हफ्त रोजा एशिया लाहौर 19 नवंबर 1976, कहते हैं आयशा और हफ्सा ये दोनों नबी पर जरी हो गई थी और हुजूर के मुकाबले में जुबान दराजियां करनी शुरू कर दी। शेखुल हदीस व तफसीर मखदूमुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये आम शख्स नहीं है। अगर देवबंदी तबलीगी जमात का है, मौलाना तारिक जमील को मानता है तो मौलाना तारिक जमील को पीर है। अगर देवबंदी जिहादी जमात का है, मौलाना मसूद अजहर को मानता है तो मसूद अजहर साहब का पीर है। देवबंदी अगर जमीयत उलमा इस्लाम का है, मौलाना फजल रहमान को मानता है तो मौलाना फजल रहमान का ये शख्स पीर है। अगर सिपाही साहबा का है, मौलाना आजम तारिक को मानता है तो मौलाना आजम तारिक का पीर है। इन चारों उलमा का पीर है मौलाना यूसुफ लुधियानवी। उनने लफ्ज लिखा है जवाब में, उन्होंने कहा मौजूदियों में इसका जवाब और नहीं देता। एक बात कहता हूं, तुमने कहा नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां हुजूर पे जुबान दराज हो गई थी, तुम हुजूर की जगह मौजूदी का नाम लिखो, आयशा हफ्सा की जगह मौजूदी की बीवी का नाम लिखो, फिर इबारत पढ़ो कि मौजूदी की बीवी मौजूदी के मुकाबले में जुबान दराज थी। मौजूदियों तुम बर्दाश्त कर जाओगे? अपने कायद पे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान इतना बेगैरत है अपनी हलाली मां के ऊपर बर्दाश्त कर जाए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए बर्दाश्त कर जाओ, हमसे बेगैरती बर्दाश्त नहीं होगी। ये सहाबा कराम पे इससे बढ़ के बात करता हूं। चलो ये तो बीवियों के लिए, मैं मामलात को छोड़ रहा हूं। ये मैं आपको मुख्तसरन बात, हजरत उस्मान हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये बनु उमैया से है। आज हमारे जाहिल देवबंदी कहते हैं बनु उमैया जालिम खानदान है, बनु उमैया जालिम। कुछ मौलवी भी इस मामले में मुब्तला है, बनु उमैया जालिम खानदान। मेरे सामने एक मौलवी ने कहा बनु उमैया जालिम है। मैंने कहा किस दलील पे कहते हो? कहते यजीद इस खानदान से आया। मैंने कहा फिर बनु हाशिम भी जालिम है, अबू लहब इस खानदान से आया। बनु हाशिम को इज्जतदार मानते ना, हजूर का कबीर। अबू लहब तो बनु हाशिम है, अबू लहब बनु हाशिम का सरदार है, रब ने लानत की है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अकेला नहीं, विद फैमिली। तो विद फैमिली जहन्नम जाएगा। किसी आदमी के बेईमान होने की वजह से वो सारा खानदान गलत नहीं होता। ओए बनु उमैया वो खानदान है जहां से हजूर ने बीवियां ली भी हैं, बेटियां दी भी हैं। हजरत मैमूना, हजरत सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, रमला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी की बीवियां हैं, बनु उमैया हैं। और हुजूर पाक की 4 बेटियां हैं। एक बेटी बनु हाशिम में गई है, अलीजुल मुर्तदा। 3 बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम बनु उमैया में गई। अबुल आस जिनका नाम लकीत इब्न रबी है, और 2 हजरत उस्मान को यके बाद दी गई। तो हुजूर ने तो इस खानदान को बेटियां दी हैं, तो कहते हैं जालिम है। ये मौदूदियत का असर है। मौदूदी ने हजरत मुआविया और उस्मान के हाथ साफ किए। आज हम समझते हैं बनु उमैया जालिम खानदान है, साहबे करम का खानदान है रज़ी अल्लाह। अब देखें, अब मौदूदी के अल्फाज देखें। मौदूदी कहता है तजदीद इहयाउद्दीन तबशम सफा 36, मुआविया माल गनीमत में कुरान की मुखालफत कर जाते थे। उस्मान को जो ओहदा मिला था ये इसके काबिल नहीं थे। तू जज है, तू साहबों में फैसला करे। हम सिमाए मौता के मसले में बात नहीं करते। आम मुर्दे सुने भी ठीक है, नाम सुने भी ठीक है, साहबा में इख्तलाफ हम फैसला नहीं करते। नबी के लिए तो सब साहबा के इत्तेफाक है कि हुजूर सुनते हैं। आम मुर्दे के लिए हम नहीं कहते जो आदमी ना सुने भी तो देवबंदी नहीं है। हम कहते ना बाबा साहबा में इख्तलाफ है, दोनों पहलू ठीक है। तो इस मामले में देवबंदियत ने इतना बड़ा ज़र्फ रखा है और ये हजरत उस्मान के लिए फैसला दे रहा है। और मिला ठीक नहीं। काश तो दौरे उस्मानी में होता, काश वहां होता और अमर इब्न आस की तलवार होती। फिर देख ले, अमर इब्न आस की तलवार तो इब्न सिद्दीक पे चल गई है, उससे नहीं छोड़ा। हजरत उस्मान के मुकाबले में निकलने के लिए इसे छोड़ा जाता। अच्छा, साहबा इकराम पे ऐसे इस हादसा, मैंने सिर्फ इन साहबा पे बातें की हैं।
वरना वासे लिखा है इसका तफहीमात सफा 36 पर, सफा 35 पर कहते हैं सहाबा कराम जो नए नए ईमान लाए थे इन पे यहूदियों के अखलाक का असर चढ़ गया था। याद रखें ये फितना मौदूदियत। अच्छा, अब उम्मत मुस्लिमा पे नजर डालते हैं। सहाबा के बाद इसने उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या से क्या बातें की हैं। पूरी दुनिया के उलमा का इत्तेफाक है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़ी शख्सियत है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के ऊपर हाथ साफ करते हुए कहते हैं तारीख पे मैं नजर डालता हूं तो मुझे पता चलता है कि आज तक कोई मुजद्दिद कामिल पैदा ही नहीं हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद बनना चाहते थे मगर वो भी नाकाम है। पढ़ी तो मुल्ला बढ़ती और क्या कहा। उमर बिन अब्दुल अजीज इमाम गजाली में ये नुक्स था कि वो हदीस में कमजोर थे। चल ये जरा भी देखे शाह वलीउल्लाह मुजद्दिद अल-फसानी सैयद अहमद सैयद इस्माइल का जिक्र करके लिखते हैं ये लोग तसव्वुफ की बीमारी में मुसलमानों की बीमारी का अंदाजा न लगा सके और लोगों को वही ग़िज़ा दी जिससे परहेज की जरूरत है। मैं अभी गया मौलाना मुनाज़िर इस्लाम मौलाना अबू अय्यूब कादरी दामत बरकातुल आलिया 7 से बालाकोट में शाह इस्माइल शेख की कब्र पे जाओ 189 साल हो गए उस आदमी के शहीद हुए। खुदा की कसम आज भी वो मंजर सामने आ जाता है। दिल्ली का शहजादा है बालाकोट के पहाड़ों में शहादत पाके सोया हुआ है और तो इस पे भाग गया। अब अंदाजा लगाए ये मौदूदियत के अफकार हैं, इनकी तालीमात है और हम इन्हें बड़ा अच्छा मानते हैं। फिर इससे किसी ने पूछा कि कुरान पाक समझने के लिए क्या जरूरत है तो अपनी किताब तफहीमात सफ़ा 193 तबा 4 में कहते हैं कुरान समझने के लिए किसी तफसीर की जरूरत नहीं है, बस एक प्रोफेसर काफी है। एक प्रोफेसर काफी है। प्रोफेसर की तालीम मैं जानता हूं, पीएचडी लेवल की तालीम को ले आओ, मौलवियों की 8 साल तालीम में तीसरे साल से आगे जा ही नहीं सकते। मैं जानता हूं, मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों को जानता हूं क्या माहौल है क्या नहीं है। मैंने बीए टॉप किया है इस कॉलेज के अंदर। हमारी इंग्लिश आपको पता है मौलवियों क्या होती है, लेकिन ये सारे को नहीं गए गुजरे लोग। मैंने रेगुलर वहां के मतलब लोगों को जानता हूं कि क्या है क्या नहीं है। एक प्रोफेसर काफी है क्योंकि खुद जो आप अपने दौर दादूरा 8वीं फेल तो ऐसा आदमी यही बातें करेगा और नहीं करेगा तो क्या करेगा। कहते हैं बाज सहाबा में कमजोरियां थी तभी वो एक दूसरे पे चोटें कर जाते थे। कुरान कहते हैं वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने सबको जन्नत का टिकट दिया है। उलाइका हुमुर राशिदून, यही हिदायत याफ्ता है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, मुफ्लिहून कामयाबी इन्हीं में बंद है। उलाइका हुम खैरुल बरिया, दुनिया की बेहतरीन मखलूक है। हुमुल मुमिनून हक्का, हकीकी मोमिन है। और ये कहते हैं इनमें कमजोरियां थी। अब ये आलम है। सिर्फ शिया सहाबा का दुश्मन नहीं है, मैंने तभी कहा है आप ममातियत को पढ़ें। हजरत अबू हुरैरा पे मोहम्मद से नेलवी ने हाथ साफ किया है, हजरत हुसैन पे मोहम्मद से नेलवी ने हाथ साफ किया है। ममातियों को पढ़ के देखें, मोहम्मद से नेलवी लिखते हजरत हुसैन चंगा काबे से लगा गया। मोहम्मद से नेलवी इसी वजह से तो इसका जनाजा जेल से निकला, इस पे गुस्ताखी का केस आ गया था। ममाती भी भौंका है सहाबा को, शिया भी भौंका है, मौदूदी भौंका है। गैर मुकल्लिदियत का नवाब नूरुल हसन खान लिखता है ये उमर की बिदअत। हजरत उमर का काम सुन्नत होता है, हदीस में सुन्नतुल खुलफा राशिदीन, तो बिदअत कहते हैं। उसने भी हाथ साफ किए। रज़ा खानियत को देखो तो ये भी सहाबा किराम पे हाथ साफ कर जाते हैं। क्या करो, इसीलिए मैंने कहा ना खालिसतन जो बंदी मजमा बैठे तो मुझे खुशी हो रही है, उसकी वजह ये है। अच्छा आगे जरा चले। अब खुमैनी मौदूदी भाई भाई, ये किताब छप गई है अल खुमैनी वल मौदूदी शकीकान, अरबी में इसका तर्जुमा भी आ गया, आप इसको पढ़ के देखें। खुमैनी ने अपने दौर में मौदूदी की किताबें मंगवा के अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के लिए दाखिल कर दी थी। देखिए किताब वो मंगा रहा है, यारी को देखो। खुमैनी दीदी पाकिस्तान दौरा करना है, ईद घर आके लाई। आप अखबार तो उठाए, ईदों क्यों हुई है तिलक दास। मुनव्वर हसन जो अभी अमीर है जमात इस्लामी का, इसका रोजनामा नवाए वक्त रावलपिंडी सफा नंबर 20 नवंबर 1979 के अखबार उठाए। मुनव्वर हसन लिखता है मकसद एक है, नाम खुमैनी हो या नाम मौदूदी हो, मकसद एक है। तुम इसे कहो ये इस जमात इस्लामी में, ठीक है। मैं कैसे इसको अच्छा मान, मुझे उस दिन एक दोस्त है, बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, गिलानी टाउन से उनके रिलेटेड ताल्लुक, मैंने ये बातें सामने रखी तो रोने लगे। मैंने कहा रोते क्यों? कहते मुझसे मैक को नहीं पता, ऐसा तो कितने साल पर मौदूदिया को वोट ले ली, हम तो कितने साल से इन्हीं के साथ है। अब मैं सोच रहा हूं मैं कैसे समझाऊं अपने वालिद को। आप अंदाजा देखें ये आलम है। और हम न बताते ऐसा कि नहीं सही छोड़ो, बस सिर्फ छोड़ो। मैं कहता हूं करो, तबलीग का काम अवाम का भी है उलमा का भी है, लेकिन तबलीग वालों को अगर कोई तकलीफ दे तो फिर इंजेक्शन दलाइल का भी लगवाना चाहिए। बाबा जब बंदा मिठाई खाता है पेट में गुड़गुड़ होती है तो डॉक्टर टीका नहीं लगाता, तो जब ये फितने को ऊपर नीचे करेंगे तो मुनाज़िरीन छोड़ेंगे नहीं। ये आलम है। अच्छा
ये छोड़े, मैं अकाबिर का तर्ज अमल पेश करता हूं कि हमारे अकाबिर ने इसके लिए क्या से क्या लिखा है। आप हैरान हो जाओ, ये मेरा कलाम नहीं है मौदूदियत के लिए, हमारे अकाबिर उलमा ने इसके ऊपर ऐसा रगड़ा चढ़ाया है, मौदूदी याद रखेंगे। रोजनामा अल एहसान लाहौर 11 सितंबर 1948, मुजद्दिद अल मिल्लत हकीम उल उम्मह हज़रत शेख अल अरब वल अजम मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि मेरा दिल इस तहरीक को कबूल नहीं करता। मौलवी अशरफ अली थानवी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह का और बात देखें, तर्जुमान इस्लाम लाहौर 1957, मौदूदी की किताब देख के हजरत थानवी फरमाने लगे गंदगी भी साथ मिलाता है, झूठो लोगों की बातें तो ऐसी हुआ करती है। हजरत थानवी का कलम चला इसके लिए, मैं नहीं कह रहा। हजरत शेख अल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन्हें तो हद ही कर दी। शेख अल हदीस मौलाना ज़करिया फज़ैल अमाल वाले इनके घर पहुंचे और हजरत मदनी पहुंचे और हजरत ये पहुंचे, इशा की नमाज पढ़ी और इसे कहा आज मैं तुमसे मिलने नहीं आया, काम के लिए। क्यों? मौदूदी का फितना बढ़ता जा रहा है, तेरी नजर इस पे नहीं है। हजरत है, ये मैं इसकी किताबें लाया हूं, तो भी इकट्ठे कर, चल बैठ। इशा की नमाज के वक्त ये दोनों बड़े बैठे, हजरत मदनी और हजरत ज़करिया। सुबह की नमाज के वक्त 1961 में किताब तैयार है जिसका नाम है फितना मौदूदियत। 57 में हजरत मदनी की वफात है, 1961 बाद में छप गई थी। देख ले, इन दोनों बुजुर्गों ने बैठ के एक रात में इसके खिलाफ किताब लिखी। और हजरत मदनी लिखते हैं मौदूदी जमात गुमराह है, अकीदे कुरान के खिलाफ है, इस जमात से तावन गलत है, इसके फितने से मुसलमानों को बचाने के लिए खामोशी और गफलत छोड़ दो। ये मुझे कहा गया है, मौलवी को कहा गया है। फिर फरमाते हैं मौदूदी की किताबों को पढ़ना गुमराही है। मौदूदी अकाबिरीन की नजर में सफा 7 उठा लो। शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी, मैं कहता हूं ना तबलीगी जमात के इस शेख ने हर फितने को रगड़ा दिया है, ममातियत को भी रगड़ा दिया है, रजा खानियत को भी दिया है, मौदूदियत को भी दिया है, गैर मुकल्दियत को भी नहीं छोड़ा। आप देखें औजज़ुल मसालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक 16 जिल्दों में किस तरह गैर मुकल्दियत की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है शेख ने। आप इस्तदलाल देखें अनाफ का वाउज़, फितना मौदूदियत किताब लिखी है। ममातियत के लिए मकाती में शेख अल हदीस में लिखा कि मैं अकाबिर का अंधा मुकल्लिद हूं, तुम नहीं मानते हयातुन नबी नहीं मानते, जाओ जानना मुझे क्या। हमारे शेख की बातें सुने। हज़रत ज़करिया कहते हैं 14 अगस्त 1951 फितना मौदूदियत नाम रखा, किताब लिखी और उसमें लिखा मौदूदी इस्लाम को सुतून गिरा रहा है, हुज़ूर पाक के साथ गलत बातें शामिल करता है, सहाबा के दौर से लेकर आज तक इसकी नजर में सारे गुस्ताख हैं। फिर ये किताब शाया की, इस पे जिनने दस्तखत किए हैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, अमीर शरीयत। बारिश आ रही है ना तो ऊपर देख के कहा या अल्लाह या तू बरस या मुझे बरस ले। आप उन गवाहों को देख लो, भाई कारी खालिद गंगोई साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें, इनके इलाके के गवाह है, इनके वाले साहब भी शायद गवाह हो, खत्म नबूवत के हमारे नायब अमीर है। हजरत बुखारी के कारनामे क्या है यार, आज भी इसका नाम आता है तो जिस्म खोल उठता है। आधी जिंदगी रेल में, आधी जिंदगी जेल में गुजरी है। तौला से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तस्दीक की है कि हाँ मौदूदी बेईमान है। 1961 में शेख की वफात है, 10 साल पहले तस्दीक करके गए। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी खत्म नबूवत के पहले अमीर, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने फितना मौदूदियत पे कलम रखा है। फितना ममातियत इनायतुल्लाह शाह गुजराती को सबसे पहले सन 57 में इनने पकड़ा था। अच्छा, हजरत मौलाना लाल हुसैन अख्तर, अल्लाह अकबर, और हजरत मौलाना अब्दुल हक मौलाना समीउल हक के वालिद अकोड़ा खटक वाले, इन्होंने इसकी तस्दीक की है। मुफ्ती किफायतुल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों को इससे अलग रहना चाहिए। मुफ्ती मेहदी हसन दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आजम है, कहते हैं मुसलमान पे वाजिब है कि इस जमात से अलग रहे। ये मौदूदियत के मैंने आपके सामने मुख्तसर तारुफ रखा है कि मौदूदी है क्या। फिर इसने किताब लिखी खिलाफत मलूकियत, उसने सारे सहाबा को रगड़ा, ऐसा रगड़ा कहते हज़रत उस्मान बहुत अच्छे आदमी थे लेकिन बिदअत इससे शुरू हुई है। चल ले ये अच्छा बंदा, हदीस में आता है बिदअती आदमी था, वो कहना तौबा तौफीक ही नहीं थी, ये लफ्ज बोलते हैं। और इसका जवाब किसने दिया है? मौदूदियत की किताब खिलाफत मलूकियत का जवाब शेखुल इस्लाम आज के दौर का हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी ने इसका जवाब दिया, आम शख्स नहीं। हजरत मुआविया और तारीखी हकायक डॉक्टर तकी उस्मानी की किताब है, इसने इस फितने को भी नहीं छोड़ा। मौलवी गुलाम अली मौदूदी का नायब था, उसने जवाब लिखा इस किताब को, उसने जवाब लिखा, चलो इसका जवाब ले। हजरत मुआविया और तारीखी रिवायात ऐसा रगड़ा चढ़ाया तकी साहब के शागिर्द ने कि अली की जिंदगी याद रखेगी। उन्होंने जवाब लिख दिया। हाल ही में नसीरुद्दीन गोलड़वी, गोलड़ शरीफ का पीर, हम समझते थे बहुत चंगा बंद है, अकीदत तौहीद का कायल बनता है,
इस बेईमान के काम देखे, किताब लिखी नाम और नसब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हिफाजत के लिए रगड़ा दिया हजरत मुआविया को। शेख सलीमुल्लाह खान दामत बरकातुल आलिया ने अपने हुक्म से किताब लिखवाई है हजरत उकाड़वी के शागिर्द मौलाना जफर इकबाल से, हजरत मुआविया और गुमराह को गलत फहमियों का इजाला। उसने कहा अच्छा तूने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दिफा की था, वलीउल्लाह का दिफा की था, साहब रसूल को रगड़े कर रख लेते, ये कौन सा है? ये मेरे भाइयों यही हालात है। फितना मौदूदियत को समझने के लिए आखिरी बात करने लगा हूं। याद रखना, हमने एक किताब मुरत्तब की है, सिरात मुस्तकीम कोर्स। ये सिरात मुस्तकीम कोर्स बाहर मौजूद है। इस फितने के मैंने 15-20 सफात में मुकम्मल सारा ताना बाना इसको खींच के रख दिया, और वो किताब 1-2 साल से शाया है, और धड़ल्ले से कहता हूं ये किताब मौजूद है। कोई मौजूदी है, किसी को जुर्रत है मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में रिट करे, मैं अदालत के फैसले से मौजूदियत को बेईमान साबित न करूं, मैं देवबंद का बेटा न करूं। मेरी किताब आ चुकी है इस मसले पे। आप मौजूदियत को देखिए कि मौजूदी जवाब क्यों नहीं देते, जरा निकले मैदान में। हमातियत के लिए है, गैर मुकल्दियत के लिए भी आ रही है, शीयत के लिए आ रही है, रजा खानियत के लिए आ रही है। किसी में जुर्रत है तो आए ना, हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है, लोग जाते हैं, रिटे करते हैं, मेरी जो है ना जमीन गसब हो गई है, मेरी जो है घर गसब हो गया है, मेरे साथ ज्यादती हो गई है, लोग रिट करते नहीं करते। यदि करे ना रिट कि इस शख्स ने हमें यूं कहा, मैं जाके दिखाता हूं, हजरत अली फरमाया करते थे तो नाम का लफ्ज आप रेट तो करो एक दफा, फिर मैं अदालत का फैसला दिखाया करूंगा। हजरत अली के लफ्ज है तो हमें वो लिख दिया, आप बाहर जाकर उसको ले। फितना मौदूदियत के भी ऊपर भी है, ममातियत पे भी है, बरेलवियत पे भी है। 2 किताबें गैर मुकल्लिद और शीयत पे भी रहती हैं, वो जेर तबा है। दुआ करें अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फरमाए, उसके भी असबाब अता फरमाए। मेरे भाइयों याद रखना, ये चंद बातें मैंने की हैं सिर्फ समझाने के लिए, अपने बंदों को इस मामले में आगाह करने के लिए, किसी की जात को नीचा करने के लिए नहीं। मौदूदी आज भी जितना ग्रुप है वो इस मौदूदी अबुल आला पे लानत भेजे, कहे मैं इसको नहीं मानता, मैं कहूंगा तू मेरा भाई, हम सीने से लगा लेंगे, हमें तो तकलीफ नहीं है। अकायद के सिलसिले में हमने रद्द किया है तो यह रद्द करना हमारा हक है। जो बोलेगा हमारे हजरात के खिलाफ, हम इंशाअल्लाह उसका रगड़ा निकालेंगे, याद रखिए, बचेगा नहीं। शीशे के घर में बैठ में पत्थर मारने वाले को छोड़ा नहीं जाता, ठीक है? थप्पड़ का जवाब पत्थर भी जानते हैं, थप्पड़ का जवाब ईंट भी जानते हैं। ये उलमा देवबंद का पुराना तर्ज अमल है। अल्लाह पाक आपको और मुझे हर फितने से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, मुसलमानों को बतलाने की तौफीक अता फरमाए।